Good morning to all my dear students. Today, after studying all the theory topic of bank reconciliation statement, here we are starting with the actual pro forma of BRS and how we are going to equalize this cash book and passbook, okay, through having such BRS system. Okay, so in this chapter or in this lecture we are going to conclude that how we are going to measure our cash book balance, okay, how we are going to equalize our cash book balance with passbook balance. Okay, that is what balance as per passbook को हमें बैलेंस एज पर कैश बुक को हमें कहाँ तक लेकर जाना है, बैलेंस एज पर पासबुक तक लेकर जाना है. व्हाट डज इट मीन? सिंपली वी हैव टू कन्वर्ट आवर बैलेंस एज पर कैश बुक टू इनटू बैलेंस एज पर पासबुक. इज दैट क्लियर? जो वॉट एवर द एंट्रीज वी हैव डन इन द कैश बुक, दैट एंट्री वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर. वी आर गोइंग टू remake or rechange those entries as per passbook only. Okay, is that clear? And for that purpose here is the formula bank reconciliation statement as on जो कुछ भी आपका year होगा that thing you will mention over here. Okay, particulars amount plus and amount minus. Okay, plus साइन वाले amounts यहाँ पर आएंगे, माइनस साइन वाले amounts यहाँ पर आएंगे. Is that clear? And next thing is what? Balance as per cash book. Okay, whatever the balance as per cash book is given in your sum, so that balance as per cash book you will write it down in plus column. Okay, plus column में 40,000 लिख दिया. Okay, so whatever the things are coming in the transaction, so all those transactions you will have to write down over here. और वो transactions के हिसाब से हमें वो transactions क्या करने पड़ेंगे, पासबुक को मद्देनज़र रखते हुए. व्हाट डज इट मीन? टू मेक द सेंटर लोकेशन एज अ पासबुक. आफ्टर लोकेटिंग दिस पासबुक एज अ सेंटर लोकेशन, आपको उस हिसाब से आपको ये सारे ट्रांजेक्शन प्लस या फिर माइनस में मॉडिफाई करने हैं. इज दैट क्लियर? नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? Okay, see, we have studied the different causes due to which there is a difference in the cash book and passbook. Okay, we are going to consider all those causes only. Okay, now here I am not mentioning any cause, just pay attention in these two bowls. Okay, one bowl is cash book bowl and another bowl is passbook bowl. Okay, both the bowls are with the full of rupee. ओके, दोनों बाउल्स में कुछ पैसे पड़े हैं, यहाँ पर भी कुछ पैसे, यहाँ पर भी कुछ पैसे, बट दे आर नॉट इन अ इक्वल मैनर. व्हाट वी हैव टू डू, वी सिंपली हैव टू इक्वलाइज दिस बोथ द बाउल, दैट इज कैश बुक का बाउल और पासबुक का बाउल. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज ये दोनों बाउल्स को इक्वलाइज करने के लिए व्हाट वी विल फॉलो, वी विल फॉलो ओनली एंड ओनली पासबुक बैलेंस. इज दैट क्लियर? इफ इन द पासबुक देयर इज 40,000 rupees and in the cash book there is 30,000 rupees. Okay, and as per the passbook this 40,000 rupees is right amount. So what we have to do is 10,000 यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी. Is that clear? 10,000 I will add over here. Okay, suppose I have given one check for payment. Here I am writing, मैंने चेक किसी को दिया है, okay, to some creditor. ओके, फॉर पेमेंट पर्पज़, मुझे क्रेडिटर को पेमेंट करना था तो मैंने उसे चेक दे दिया. सो सडनली व्हाट आई हैव डन, मैंने वो चेक के जो 5,000 रुपीज़ थे, आई हैव डिडक्टेड दिस 5,000 रुपीज़ फ्रॉम माई कैश बुक. बट पासबुक में व्हाट डज इट मीन, इन द बैंक दैट चेक हैज़ नॉट येट क्लियर्ड. व्हाट डज इट मीन, मेरे पासबुक में से अब तक 5,000 माइनस हुए हैं क्या? नो, अभी तक वो 5,000 मेरे पासबुक में से, मेरे बैंक में से माइनस नहीं हुए. सो आई विल ऑलवेज फॉलो माई पासबुक एंट्रीज ओनली. पासबुक से 5,000 रुपीज़ माइनस नहीं हुआ है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कैश बुक में अगेन आई विल एड बैक माई 5,000 रुपीज़. ओके, जो मैंने माइनस कर दिए थे उसको मैं फिर से प्लस कर दूंगी. इज दैट क्लियर? दिस इज पॉइंट नंबर 1. Point number 2 is, suppose your bank
has already collected, directly collected dividend amount. ओके, डिविडेंड अमाउंट बैंक ने कलेक्ट कर दिया, से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़. सो आपके पासबुक में 1000 रुपीज़ ऐड हो गया है. ओके, एंड वी ऑलवेज नीड टू फॉलो पासबुक ओनली. सो पासबुक में इफ योर बैंक इज एडिंग 1000 रुपी, सो इन कैश बुक ऑल्सो यू हैव टू ऐड 1000 रुपी. ओके, is that clear? If your passbook is deducting some bank charges, so if your bank is deducting some bank charges, पासबुक में भी वो माइनस हो गया है. सो सेम थिंग यू हैव टू माइनस फ्रॉम योर कैश बुक. इज दैट क्लियर? ओके, बट ये चेक का एग्जाम्पल फिर से देखो. चेक मैंने क्या किया, इशू किया फॉर द पेमेंट पर्पज, और झटक से मैंने क्या कर दिया, 5000 रुपीज़ आई हैव मिनिमाइज फ्रॉम माई कैश बुक. बट मैंने देखा क्या कि मेरे बैंक ने भी वही पैसा माइनस किया है क्या? नो, बैंक ने वो पैसा अभी तक माइनस नहीं किया. सो आई विल अगेन ऐड बैक this amount in as a 5000 in cash book. Okay, so this is how the process of bank reconciliation. Okay, and for that purpose we are going to solve one sum, okay, based on this BRA. So hopefully all the points will get cleared at the end of this topic. Is that clear? Okay, so move on towards the first sum. Okay, here is your first problem based on bank reconciliation statement. Okay, first of all what you need to do, you need to read the whole solution, the whole problem in detail, and take a pencil in your hand and just tick that whether this particular transaction we need to add or we need to less, okay, from your cash book side. इज़ दैट क्लियर? बिकॉज हमें कैश बुक में से कहाँ पर जाना है, पासबुक में जाना है. ओके, इन द पासबुक यू कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ चेंजेस बिकॉज वो बैंक कर सकती है, बट कैश बुक में जो कुछ भी चेंजेस है वो सब कुछ आपको करने हैं. सो कैश बुक में व्हाट थिंग यू हैव टू प्लस, व्हाट थिंग यू हैव टू माइनस, दैट थिंग यू हैव टू टिक ओवर हियर. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी, फर्स्ट इज व्हाट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज़ 50,000. ओके, सो 50,000 मेरे कैश बुक में पड़ा है ऑलरेडी. इज दैट क्लियर? सो सिंपली राइट डाउन बैलेंस एज पर कैश बुक. हियर इज माई आंसर. आई विल स्टार्ट विथ माई आंसर. फर्स्ट, बैलेंस एज पर कैश बुक. Okay, and my balance as per cash book is how much? It is 50,000 in plus sign. Okay, or else in plus amount. मतलब मेरे पास अभी इतना पैसा पड़ा है in my cash book. Okay, as per my calculation. Okay, not as per the passbook. That is not as per my bank calculation. Cash मेरे खुद के कैलकुलेशन, मेरे अकाउंटेंट के कैलकुलेशन के हिसाब से this 50,000 is in my hands. Okay, so next is check issued but not presented for payment rupees 6,000. what does it mean? मैंने किसी को 6,000 रुपीज़ पे करने चाहिए. ओके, फॉर पेमेंट दिया है कितना रुपीज़? 6,000 रुपीज़. सो व्हाट आई हैव डन इन माई कैश बुक, मैंने क्या कर दिया, ये 6,000 रुपीज़ लेस कर दिया. ओके, बिकॉज इट इज़ पेमेंट से पेमेंट थ्रू आई हैव मिनिमाइज 6,000 फ्रॉम माई कैश बुक. ओके, ध्यान से सुनो. बट उन्होंने क्या बोला है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. ओके, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. व्हाट डज इट मीन? मैंने जो मिस्टर ए को जो चेक दिया था, मिस्टर ए को 6,000 का, वो मिस्टर ए ने अब तक वो चेक बैंक में डाला ही नहीं है फॉर द पेमेंट पर्पज़. ही हैज़ नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. ओके, बट मैंने क्या कर दिया, मिस्टर ए का खाता क्लोज कर दिया बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 6,000 रुपीज़ का चेक. ओके, लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में गया ही नहीं है. व्हाट डज इट मीन? बैंक में से क्या वो पैसा माइनस हुआ होगा? नो, बैंक में अभी तक वो पैसा पड़ा है. मेरे बैंक में से अभी तक वो पैसा माइनस नहीं हुआ है, बट मेरे कैश बुक में से मैंने क्या कर दिया, वो पैसा माइनस कर दिया. एज सुन एज आई हैव इशूड माई चेक फॉर द पेमेंट, वैसे ही मैंने कैश बुक में से पैसा माइनस कर दिया.
ओके। एंड एट द सेम टाइम हमने जो कैश बुक सीखा है, कैश बुक में वैसे ही हमने सीखा था, ओके, पेड चेक या फिर इशूड अ चेक टू मिस्टर ए फॉर ₹6,000, तो हम क्या कर देते थे, बैंक में से पैसा माइनस कर देते थे। ओके, इन माय कैश बुक बैंक कॉलम में से वी वुड माइनस दिस ₹6,000 फ्रॉम आवर कैश बुक बैंक कॉलम, यस और नो। सो हमने सेम वही कर दिया, लेकिन वो हमारा गलती था। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया है। सो बैंक में अगर वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब मिस्टर ए को अभी तक पैसा मिला है 6,000 नहीं। ओके, क्या मेरे बैंक में से वो ₹6,000 माइनस हुआ है, मिस्टर ए के पास गया है? नहीं। सो इन शॉर्ट, मेरे पासबुक में, व्हाट डज इट मीन, इन माय बैंक, इन माय पासबुक दिस ₹6,000 अभी तक क्या है, ऐड है। व्हाट डज इट मीन? एंड हमें कैश बुक को चेंज करना है बाय फॉलोइंग दिस पासबुक। ओके, सो अब तक पासबुक में, जस्ट कंसिडर दिस थिंग, क्या पासबुक में से वो 6,000 माइनस हुआ है? नो, लेकिन हमने माइनस कर दिया है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड इट बैक, ऐड बैक। इज दैट क्लियर? ऐड करना है इन कैश बुक। इज दैट क्लियर? ओके, सो हियर आई विल राइट डाउन दिस सेकेंड एंट्री, और सेकेंड एंट्री को मैं क्या नाम दूंगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हियर आई एम गोइंग टू राइट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एंड क्या करना है मुझे, दिस 6,000 आई एम गोइंग टू ऐड इन माई कैश बुक अगेन। सो 6,000 प्लस अमाउंट में आएगा। ओके, सेम एज लाइक हियर। ओके, मैंने किसी को चेक दिया, कैश बुक में से मैंने पैसा ऑन द स्पॉट माइनस कर दिया, लेकिन वो पैसा मेरे बैंक में से माइनस अभी तक हुआ है क्या? नहीं हुआ है, इसीलिए आई एम अगेन गोइंग टू ऐड बैक दैट मनी। इज दैट क्लियर? सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000 ऐड करना है। Is that clear? Now next is the bank had directly collected dividend of ₹8,000 and credited to bank account but was not entered in cash book. बैंक ने, ओके, अभी मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ, बैंक ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ₹8,000 क्रेडिट कर दिया है एज अ डिविडेंड। ओके, बट ये एंट्री मेरे कैश बुक में नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, इन माय पासबुक में ये 8,000 का एंट्री क्रेडिट हुआ है। व्हाट डज इट मीन? बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड। कलेक्टेड डिविडेंड मीन्स इट इज़ वन टाइप ऑफ इनकम। सो मेरे बैंक ने क्रेडिट किया है, ऐसे मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय ₹8,000। व्हाट डज इट मीन? कि आपके अकाउंट में पैसा क्या हो गया है, प्लस हो गया है, ऐड हो गया है। इज दैट क्लियर? बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में ये 8,000 आपने प्लस किया है क्या? नहीं। एंड फॉर कन्वर्टिंग योर BRS or else for converting your cash balance and passbook balance into equalized manner, what you have to follow, you always have to follow your passbook balance or passbook entries only. So passbook में ये ₹8,000 क्रेडिट हुआ है, मीन्स पासबुक में your bank have added ₹8,000. सो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कैश बुक में एंट्री किया होगा तो कुछ नहीं किया है, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बराबर, कैश बुक में एंट्री नहीं किया है, सो अभी कर दो। इज दैट क्लियर? सो नॉर्मली हमारा कैश बुक में कैसे आता था, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹8,000। सो आप क्या कर देते थे, आपका ये कैश बुक था, ओके, दिस कैश बुक की कैश और बैंक कॉलम, हियर ऑल्सो कैश एंड बैंक कॉलम। तो आप क्या करते थे, व्हाट वी वुड हैव डन, बैंक कलेक्टेड ₹8,000 एज अ डिविडेंड, तो हम क्या कर देते, 8,000 यहाँ पर लिखते थे एज अ डिविडेंड करके। सो मनी कम्स इन। ओके, सो वही यहाँ पर करना है, जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है वो आपको अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एड अमाउंट में यू हैव टू रिकॉर्ड दैट थिंग। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग थर्ड ट्रांजेक्शन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक।
dividend collected by bank. How much it is? 8,000 rupees. So here I am writing 8,000. Is that clear? ओके. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. हर एक ट्रांजेक्शन का आपको शॉर्ट में एक लाइन लिख देना है यहाँ पर. ओके. सो वाई यू हैव एडेड दिस? बिकॉज आपके बैंक ने भी 8,000 रुपया आपके अकाउंट में डाला है, तो आपको भी आपके कैश बुक में डालना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? कैश बुक में क्यों डाला? बिकॉज दैट एंट्री इज नॉट एग्जिस्ट येट इन योर कैश बुक, सो यू आर गोइंग टू add that entry in your cash book. Okay. Next is bank charges of rupees 400 were not entered in the cash book, same as like this entry. लेकिन क्या है, ये इनकम है क्या? डिविडेंड वॉज माई इनकम. सो इनकम मेरे बैंक ने क्या कर दिया? मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया. अगर खर्चा हो गया, बैंक चार्जेस इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, सो मेरे बैंक अकाउंट में से वो खर्चा हुआ, मतलब वो पैसा क्या हो गया? माइनस हो गया from my bank account, and that thing I came to know after some time. So cash book में वो एंट्री नहीं था. So what I am going to do is बैंक चार्जेस 400 रुपया बैंक ने मेरे कट कर दिया है फ्रॉम माई बैंक अकाउंट. ओके. वो एंट्री मैंने पासबुक में देखा और पासबुक को फॉलो करते हुए सेम एंट्री आई हैव डन इन माई कैश बुक. ओके. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बैंक चार्जेस माइनस होते हैं, सो वही बैंक चार्जेस मैं कैश बुक में से भी माइनस करूंगी. ओके. माइनस साइन. इज दैट क्लियर? सो फोर्थ एंट्री इज व्हाट? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक. ओके. बैंक चार्जेस क्या हो गए? डेबिट हो गए. बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक. बैंक का डेबिट मतलब क्या? खर्चा करती है बैंक, मतलब क्या? पैसा माइनस हो गया. हाउ मच इट इज़? 400. अभी मैं यहाँ पर लिखूँगी नो इन माइनस साइन, इन माइनस कॉलम 400 रुपीज़. ओके. नाउ द लास्ट एंट्री इज अ चेक ऑफ रुपीज 6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. नाउ डिपॉजिटेड, मुझे किसी ने चेक दिया है. आई हैव रिसीव्ड चेक फ्रॉम समबडी फॉर रुपीज़ 6,000, जो कि मुझे डिपॉजिट करना है. मतलब क्या करना है? बैंक में वो पैसा ऐड करना है मुझे 6,000 रुपीज़. येस और नो? बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. लेकिन बैंक ने अभी तक वो चेक को कलेक्ट नहीं किया है. व्हाट डज इट मीन? वो चेक को ऐड नहीं किया है. इज दैट क्लियर? ऐड नहीं किया है. A check of rupees 6,000 was deposited but not collected. Suppose आपकी सैलरी है 6,000 रुपीज़ and you are getting that salary by check. So आप हर महीने का चेक क्या कर देते हो? बैंक में डिपॉजिट कर देते हो. So you have deposited that check but not collected by bank. मतलब क्या? बैंक ने अभी तक वो चेक को क्लियर नहीं किया है. What does it mean? आपके 6,000 रुपीज़ जो आपने कैश बुक में ऐड करके रखे हैं, इन योर कैश बुक यू हैव एडेड एज 6,000 रुपीज़, कि आपको चलो सैलरी मिल गया 6,000 रुपीज़. बट एक्चुअल में क्या? एक्चुअल में बैंक में वो सैलरी जमा हुआ है क्या? नो. बैंक में वो पैसा आया है क्या? नो. व्हाट डज इट मीन? बैंक में वो पैसा नहीं है. इज दैट क्लियर? सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव रॉन्गली एडेड दिस सैलरी ऑफ रुपीज़ 6,000 बिफोर टाइम. टाइम आने से पहले ही आपने वो सैलरी को ऐड करके रखा है. जब तक बैंक ऐड नहीं करेगी तब तक आपको भी ऐड नहीं करना है. व्हाट डज इट मीन? व्हाई? यू हैव टू फॉलो योर पासबुक एंट्रीज ओनली. पासबुक में क्या वो एंट्री है? नो. नो मीन्स माइनस. ओके. माइनस मतलब क्या? कहाँ पर माइनस करना पड़ेगा? इन कैश बुक, बिकॉज यू हैव रॉन्गली एडेड दैट एंट्री इन कैश बुक. सो आपको रिकंसाइल करना है बाय मिनिमाइजिंग दैट मच ऑफ फिगर. इज दैट क्लियर? ओके. सो दिस 6,000 रुपीज यू आर गोइंग टू मिनिमाइज फ्रॉम योर कैश बुक. ओके. बिकॉज जैसे ही मिला आप क्या कर देते हो? कैश बुक के एंट्रीज में ऐड कर देते हो. इज दैट क्लियर? लेकिन अभी ऐड करना हो गया, अभी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज दैट चेक हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड बाय बैंक. ओके. सो हियर इज माय फिफ्थ एंट्री. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. हियर आई एम राइटिंग चेक deposited
बट नॉट क्रेडिटेड. क्रेडिटेड बैंक का क्रेडिट, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट मतलब क्या, ऐड होना. ओके, बट नॉट एडेड इन बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट. इज दैट क्लियर? सो ये इससे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, -6000. इज दैट क्लियर? ओके, सो हियर वी आर डन विथ आवर सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अबाउट कैलकुलेशन. नाउ कैलकुलेशन कैसे करना है, सी दिस 50,000 प्लस, बिकॉज प्लस साइन प्लस अमाउंट में है, प्लस 6,000 प्लस 8,000 एंड -400 minus 6,000. Okay, I am repeating once again, this 50,000, 6,000 and 8,000, इन तीनों को प्लस करने के बाद आपको ये दोनों फिगर्स को माइनस कॉलम में जो लिखी हुई फिगर से यू हैव टू डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम योर प्लस अमाउंट. इज दैट क्लियर? ओके, and your final figure is 57,600. Okay, but what does it mean? 50,000 plus 6,000 plus 8,000 minus 4,000 and minus 6,000 comes to 57,600. now ये 57,600 is what? it is nothing but आप अगर पहुंच गए आपके लोकेशन पर, what does it mean? पासबुक के यहाँ. so that 57,600 is nothing but your balance as per passbook. balance as per passbook. Okay, now whether you have corrected all the entries properly or not, whether you have reconciled this statement properly or not, the last thing is what, making total of this, and this total should be equal. Okay, this total should be tallied, and the tallied figure is what, 50,000 plus 6,000 plus 8,000. और ये तीनों को टैली करने के बाद क्या आता है, फाइनल फिगर इज 64,000. बट दिस इज नॉट योर आंसर. your answer is this, balance as per passbook. Okay, your examiner will check your this balance, whether this balance is proper or not. Is that clear? Okay, so all of you just note it down. Okay, solve it once you will get clear all the points. Okay, and once again solve it by yourself also. Okay, so here we are done for the day. Thank you.